friends, welcome back. It's me Vedika, and today I'm going to talk about how you can speak confidently in front of people, in front of public. So basically, I'm going to share my experience of how I got to speaking confidently in public, and I'll also share some of the tips and things that I feel that may be helpful for you when you will speak in public to be confident and to present your best. So, yeah, let's just start. Okay, so how my journey began. So, I have participated in elocution competitions majorly in my school and as well as in inter-school competitions. Currently, I'm in 12th right now. I'll be going in 12th. I've completed my 11th. So, yeah, that's what it is. So, I'm going to share my learnings basically, what helped me, how I got into this, and how you can also speak confidently in front of people. So even I wasn't confident before. So मैं first standard में थी, and at that time I wasn't confident at all. I used to be very shy, and second standard में I decided to take part in an English elocution competition. So yeah, I just took part, and I had no clue about how to speak in front of people, how to perform, and how to actually speak words like naturally, है ना, naturally कैसे बोलूँ मैं, वैसे मुझे नहीं आता था. So if you are a beginner, one thing that I would like to suggest is take part in various competitions. जहाँ भी आपको मौका मिलता है to speak publicly, go ahead, speak. Now this will basically break the ice. This will break the barrier for you to actually go ahead and do stuff. So अच्छा, अगर आप चीज़ों में participate करते रहोगे ना, so you will feel normal. It won't feel anything special to you. So what happened was, मैंने जब पहली बार, मैं आपको बता रही हूँ, एलोकेशन competition में part लिया था in my second standard. So मैंने क्या किया था, I just mugged up the material, and that's what you do when you're small. So एक और चीज़ है, just when you want to speak in front of people and you have decided, okay, you have took part and कोई elocution competition वगैरह है. For debate competitions this won't work because उसके अंदर you have to actually input things from your own side. आपको खुद से चीज़ें बोलनी पड़ेंगी. That will come in the later stages. But when you're just starting off, go ahead, take part in different speaking competitions. For example, storytelling हो गया, elocutions हो गए, ठीक है, ऐसे सब में part लो, speech हो गया, and then उसके अंदर you do your best. So what I used to do was, I used to actually get familiar with my material the most. So I used to practice it at least 4 to 5 times thoroughly, so that I'm confident when I'm speaking. ठीक है, तो जब आप एक ही चीज़ को बार बार करते हो, you get very confident in it. So वही मैं कर रही थी in my second standard as well, and I got very familiar with the topic, and when I had to speak, I was able to speak. But again, बात आती है बहुत सारे लोगों के सामने बात करने की. So don't imagine, don't see the people. मतलब लोग सामने तो है, दिख रहा है, बट आप किसी पे फोकस मत करो, किसी के फेस पे फोकस मत करो. फॉर एग्जाम्पल, most of the time what happens is, when you have your friends around, you look at their faces, and sometimes कोई ऐसे मुंह बना रहा है, कोई वैसे मुंह बना रहा है, you tend to get distracted. Don't go in that. Don't look at people's faces. Just look around, make them feel like you are looking them, but don't actually focus on what they are expressing through their faces. What are their expressions? उस पे ध्यान उस समय मत दो, because this will distract you and you may forget what you are going to speak ahead. Okay, now these were some of the beginner tips जब आप एकदम start off कर रहे हो. So yeah, in my second standard I had won the second prize at that time, and that was a lot because मैंने कभी elocution में participate ही नहीं किया था, और first time जब participate किया, I got second prize, so I was very happy. And after that, over the years, I took part in different competitions, and it went on.
So I got better at it. I started getting first prize as well. So उसके बाद से I've been participating, and जब भी मुझे मौका मिलता है I speak. Okay, so there are more factors as well and tips that I would like to give you. अब देखो बिगिनर लेवल पे आप प्रैक्टिस करके अच्छे से चले जाते हो, यू स्पीक. देखो प्रैक्टिस करके भी अभी अगर आप चले गए हो और अगर आप भूल रहे हो, होता है ना कभी कभी हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है और हम अटक जाते हैं जब हम कुछ बोल रहे हैं. सो हाउ टू गेट बैक टू इट एंड हाउ टू कंटिन्यू. ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी आप एकदम ट्रेन की स्पीड में भागने की कोशिश मत करो व्हेन यू आर स्पीकिंग. गो अ बिट स्लो, सो दैट अगर आप कहीं गड़बड़ भी कर रहे हो तो आप उसको रेक्टिफाई कर सको एंड सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए दैट वी हैव डिड अ मिस्टेक. नाउ व्हाट हैपेंस इज, इसमें बेस्ट चीज ये है कि मटेरियल आपको पता है क्या है, आपने क्या प्रिपेयर किया है वो आपको पता है. बट द जजेस, द पीपल अराउंड, दे वोंट नोटिस कि आपने क्या प्रिपेयर किया है, आप क्या बोल रहे हो. सच बोलो, स्पीच देते हो ना तब कोई आजू बाजू ध्यान भी नहीं देता कि आप ज्यादा क्या बोल रहे हो. सो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप भूल चुके हो दूसरे पैराग्राफ पे जंप कर दो जो आपको याद आ रहा है नेक्स्ट, वो बोलना कंटिन्यू कर दो. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, मैं भूल गई एंड मैंने फिर आगे से कंटिन्यू कर दिया. सच बताऊं किसी को पता नहीं चलता, कोई नोटिस भी नहीं करता. सो वैसे आप कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग, कभी कभी हाँ होता है आप अटक जाते हो, आप रुक जाते हो, बट दैट्स नॉर्मल. कभी कभार अगर ऐसा हो गया तो इट्स नॉर्मल. मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, मैं अटक गई हूँ, देन रुक के सोचा, फिर भी याद नहीं आता है कभी कभी, तो फिर यू स्टार्ट अगेन. ठीक है, बट प्रैक्टिस आप थोड़ी ज़्यादा करो सो दैट जब आपको लोगों के सामने बोलना पड़े बेटर हो कि ना. बिकॉज अगर आप अटकते हो सो इन स्पीचेस एंड एलिक्यूशन कॉम्पिटिशन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, आपके जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं. बट इफ यू आर स्पीकिंग इन पब्लिक, अगर आप थोड़ी देर का पॉज भी ले लेते हो, नथिंग मैटर्स मच बिकॉज आजू बाजू को इतना ध्यान भी नहीं देते. आफ्टर दैट इन माई स्कूल लेवल आई डिड ऑल दीज थिंग्स, एलिक्यूशंस वगैरह में मैंने बहुत पार्ट लिया. हाँ, नाउ स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली विदाउट द मैटर अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास मैटर नहीं है, सो हाउ विल आई स्पीक. नाउ इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ लर्निंग. Okay, a lot of effort that you have to put in. It's something that you will develop over the years. So क्या होता है, you will have to learn different kinds of words. अगर आपको ठीक है बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स भी नहीं आते, बेसिक वर्ड्स आते हैं, आप उनके साथ शुरू कर सकते हो. सो बेसिकली आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. नाउ दिस कैन बी डन इन मल्टीपल वेज. अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, अर्लियर इट वाजंट लाइक दैट, बट अभी यू कैन चैट विद चैट जीपीटी. आप उसके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो. आई हैड मेड अ वीडियो अबाउट द सेम. उसका जो वॉइस फीचर आया है उसमें यू कैन चैट विद चैट जीपीटी, मतलब कॉन्वर्सेशन एक प्रॉपर कंडक्ट कर सकते हो. एंड देन दैट्स वन ऑफ द प्रैक्टिस that you can do. Another thing is which actually made a big difference in my speaking is making YouTube videos. So since my fourth standard I am doing this, and yeah, I'm not very consistent in it. On and off मैं videos बनाती हूँ, but जब भी मैं बनाती हूँ I'm not with a script. So whatever comes to my mind I structure it well and I'm able to present it. देखो मिस्टेक्स मेरी यहाँ पे भी होती हैं, एडिटिंग मुझे करनी ही पड़ती है, बट आई गेट द हैबिट, आई गेट द हैंग ऑफ इट. करते करते यू विल गेट बेटर एट इट एंड उसी तरह से आप कर सकते हो. सो बेसिकली अगर आपको यूट्यूब चैनल नहीं चालू करना, इट्स कम्प्लीटली ओके, कम्प्लीटली फाइन. यू कैन रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर्स फॉर अबाउट 1 to 2 minutes, स्पीक अबाउट अ टॉपिक एंड आप रिव्यू करो वो वीडियो को, क्या गड़बड़ हो रही है. अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या गड़बड़ हो रही है तो आप किसी बड़े इंसान को दिखाओ. फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी योर elder brother, sister, or even your parents for that matter. उनको दिखाओ एंड देन जस्ट चेक दैट व्हाट यू कैन गेट बेटर एट, व्हाट यू हैव मेड अ मिस्टेक इन, एंड कैसे आप चीज़ें और बेहतर कर सकते हो. ओके, सो बाय दैट you will be able to speak confidently without a matter, and जब अपने आइडियाज को अच्छे से स्ट्रक्चर कर लोगे तो you will be able to express the most. Okay, so this is what you can do. Now one of the recent things that happened was I took part in debate competition. Okay, so debate में मैंने कभी participate नहीं किया था.
since the past 10 years of my school मैंने कभी भी participate नहीं किया था, and in my college I participated in debate competition and I was pretty nervous to be very honest because एक दिन बचा था मेरे पास, एक दिन भी नहीं था hardly, मुझे कल देना था, कल डिबेट कंपटीशन में जाना था एंड आज रात 8 बजे तक भी मेरे पास टॉपिक्स नहीं आए थे. आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि अच्छा मुझे टॉपिक के बारे में नॉलेज कैसे होगी, मैं कैसे प्रेजेंट करूँगी आइडियाज एंड वगैरह वगैरह. बट इट वॉज अ एक्सपीरियंस. सो बेसिकली क्या हुआ, वी गॉट द टॉपिक्स लेट, ठीक है, लेट एट नाइट अराउंड 9 o'clock, ठीक है. बहुत सारे टॉपिक्स थे, देयर वर अराउंड 20 to 22 टॉपिक्स एंड वी हैड टू स्पीक ऑन इट टुमारो. ना ठीक है, तो वो डे था थोड़ा सा प्रिपरेशन करने के लिए. सो मैंने उसमें से मैटर वगैरह थोड़ा ऑनलाइन एआई से कहीं ना कहीं से ऐसे निकाला एंड आई जस्ट गॉट टू नो द टॉपिक्स. मैंने टॉपिक्स अच्छे से समझे. अगले दिन देयर वाज दिस कंपटीशन. वी वर गिवन अ टॉपिक, ठीक है. तो जाने से पहले स्टेज पे जाने से 1 घंटे पहले वी वर गिवन अ टॉपिक, उस पे करना था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद मी एंड माई टीम मेट. वी बोथ वर वेरी हैप्पी विद द टॉपिक दैट वी गॉट बिकॉज वो अच्छा टॉपिक था एंड वी वर नोइंग द बेसिक्स ऑफ इट एट लीस्ट एंड हम दोनों ने उसकी तैयारी भी कर ली. And when there were last 10 minutes for the competition to start, we got to know that our topics are changed. Because जो हमारी opposite वाली team थी, that wasn't present there. So इसीलिए there was a toss in which we lost, and then we got a topic which wasn't in our favor. And in 10 minutes, we prepared that topic which wasn't so easy as well. इतना कोई easy नहीं था वो, जैसे कि पहले वाला था. और ये वाला थोड़ा हम लोग को डिफिकल्ट भी पड़ रहा था, बट स्टिल हमने मैनेज किया. हमने 10 मिनट्स में जितने भी पॉइंट्स इकट्ठा कर सके हमने किए एंड बेसिकली एक रफ शीट पे हमने सारे पॉइंट्स जॉट डाउन किए. व्हाट्स अ डिबेट कॉम्पिटिशन, बेसिकली यू हैव बोथ द टीम्स, दे आर्ग्यू टुगेदर, है ना, ऐसे होते हैं. सो वी गॉन अप टू द स्टेज एंड वी डिड दैट. इट वाज आवर एलिमिनेशन राउंड सबसे पहले. एंड हम लोग ने जो पॉइंट्स लिखे थे, वी प्रेजेंटेड दैट इन आवर ओन वर्ड्स, एवरीथिंग ऑन द स्पॉट, ठीक है. एंड उसके बाद दैट वेंट रियली वेल एंड वी गॉट सिलेक्टेड इन द सेमीफाइनल राउंड. एक्चुअली वी वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि शायद सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, बट इट वॉज गुड. सो सेमीफिनाले हुआ एंड देन आफ्टर दैट हम फाइनल्स में भी चले गए एंड उसके बाद वी वॉन द कॉम्पिटिशन. सो दैट्स व्हाट the experience was. So what I got to learn was, भले ही अचानक से कोई चीज़ हो, भले ही हमें अचानक से टॉपिक मिला हो, बट काम एंड कंपोज रहने से एंड सिचुएशन को समझ के यू नो प्रिपेयर करने से थोड़ा बहुत एंड अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने से थिंग्स कैन गो वेल. So yeah, this was my story and some of my tips जो मुझे लगा कि शायद आपको help करेंगे if you are going to speak somewhere in public. Maybe this will help you. And don't look at people कि कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, मत देखो. Just speak and don't focus on anybody's expressions. That's something that's important. And you will do wonders. So that's what happened. And yeah, I hope that it was helpful for you and you have gained some insights now. So yeah, if you liked the video, don't forget to hit the like button. Subscribe to my channel if you've not already. I'll meet you very soon. Until then, goodbye.